Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I just received a query about one of the questions from some exercise, and the question was something like this. That there is a matrix, square matrix, invertible, which satisfies this equation a square minus 3a plus I is equal to 0 matrix. Then it should lead to the result that the inverse of A is equal to 3I minus A. Now here, whatever is the order of A, we have identity matrix of the same order and 0 matrix of the same order. Now to prove from here this identity, we can write down this given equation. Did I think I've started recording, yes. Now this equation given can be written in the form A square is equal to 3A minus identity matrix added to 0 matrix. 0 matrix added to any matrix gives you the same matrix. And then we have A square is in fact A into A. So we pre-multiply from left-hand side, that is both sides with A inverse. So A inverse multiplied to 3 times A minus I. So that left-hand side associative property, we can rearrange the bracket A inverse A into A is equal to this A inverse multiplied with 3A. So 3 scalar hai, 3 bahar aa jayega. A inverse A, then A inverse multiplied to the identity matrix. On the left-hand side, A inverse A becomes identity. So identity matrix A. 3 into A inverse A is identity matrix. Minus A inverse into identity matrix is A inverse. So we arrive at this result that A is equal to 3I minus A inverse. Then taking A inverse to the left-hand side, and taking A to the right-hand side, we reach the result required. So which proves this thing. Just few minutes earlier, I received this query from some of your friend. Question number 28 of what exercise 1.4. Now, if you have any other query, please come up with that query, or I proceed further. No query? Okay, then I begin with the or continue with my discussion on inverse matrix and the elementary matrices. We
described what is an elementary matrix, that if you apply an elementary operation on some identity matrix of any order, whatever is the result is called an elementary matrix. And if I consider the operation Rij, that means interchange of rows, whatever elementary matrix I obtained, the inverse of that elementary matrix exists, uh, such that elementary matrix multiplied by its inverse is equal to identity matrix. रो इंटरचेंज का इन्वर्स जो है, this is in fact Rji into I. Similarly, if I multiply a row of identity matrix by some number, I will get another elementary matrix. Let me call it Rj, and its inverse also exists. And Rj corresponds to what? 1 upon k times Ri, where k should not be 0. Similarly, if I consider operation some constant times ith row plus jth row, that corresponds to an elementary matrix, say Ek, and Ek inverse is also obtained, and that is obtained by applying operation what? Minus of alpha Ri plus Rj. Now, what's the significance of these elementary matrices is that we learned the algorithm for finding inverse. Of A. What we did, we augmented A with identity matrix and reduced it to reduced echelon form. If this reduced echelon form is of the type कि A की जगह आइडेंटिटी आ गया और I की जगह जो भी मैट्रिक्स आया, that is the inverse of A. Now, how is it possible? Why it happens? We have seen the algorithm. You must have done some exercises on that. Using this algorithm, finding an inverse of a 3 by 3 or a 4 by 4 or 5 by 5 matrix is just achieved by this process. So how is it possible? Now we get A inverse as a result of applying elementary row operations. And each elementary row operation, as mentioned here. Now, for example, this Rij give you an elementary matrix, then applying Rij on any matrix give you some matrix B, and this matrix B can also be obtained by multiplying A with the corresponding elementary matrix. Similarly, if you apply Kri on identity matrix, sorry, not identity matrix, on any matrix A, that will be same as if you multiply the corresponding elementary matrix with A. Similarly, alpha Ri plus Rj, अगर आप अप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स A पे और आपको जो रिजल्ट हासिल होता है, that will also be obtained if corresponding elementary matrix is multiplied with the matrix A. The result will be same. So how we reach A inverse from A? We reach A inverse from A by applying elementary row operations on matrix A. It's equivalent that अगर मैं corresponding जो matrix elementary operations लगाए हैं मैंने A पर, so that it becomes I and I get B, जिसको मैं A inverse कह रहा हूँ. So in fact,
इस process में I should consider that how uh, a part of the augmented matrix transforms to identity matrix. So right side I take a identity matrix. A पे elementary row operations लगा रहे हैं, हमने कोई पहला row operation लगाया that is equivalent to multiplying matrix A with the corresponding elementary matrix. Elementary row operation apply करने का मतलब है matrix A को मल्टीप्लाई करें विद एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स. उसके बाद एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, रो ऑपरेशन, एंड दैट इज इक्विवेलेंट के जो नई फॉर्म आ रही है उसको आप नए एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें. और जितने भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आपने इस्तेमाल किए ए को आई बनाने के लिए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते चले जाएं. फर्स्ट कीजिए, आपको एन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने पड़े ए पर, और उसके बाद वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया. इट इज इक्विवेलेंट दैट के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिसेस से हम ए को मल्टीप्लाई करते गए तो ये रिजल्ट आया. नाउ दिस इक्वेशन which represents a practical situation. Okay, when we apply elementary row operations on A to reduce it to identity matrix, it is same as अगर हमने जो elementary row operations लगाए हैं उनकी corresponding elementary matrices से A को multiply करते चले जाएं तो identity matrix आ जाएगा. Now, we also know that every elementary matrix is invertible, यानी उसका inverse exist करता है, that we discussed here. Corresponding to every elementary matrix, there is an inverse. So from this equation A, I can see different things. For example, let me put all these elementary matrices into one bracket. Now this means what? This means if I multiply the left-hand side with A inverse, what will be the result? Right-hand side को भी A inverse से multiply करूँगा. This part becomes identity matrix, and that means, in fact, A inverse is nothing but the product of the elementary matrices corresponding to the elementary row operations that we apply on A to reduce it to reduced echelon form, that is identity matrix. So this line A, formula A is written directly from the fact that जब हम एक मैट्रिक्स A पर कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल करते हैं, और ये फैक्ट के एलिमेंट्री मैट्रिक्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किसी मैट्रिक्स पर लगाना या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना एक ही बात है. सो फ्रॉम देयर वी डायरेक्टली हैव रिटन दिस लाइन कि पहला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन corresponding elementary matrix, दूसरा elementary row operation corresponding elementary matrix, तीसरा elementary row operation corresponding elementary matrices. इनसे हम मल्टीप्लाई करते चले आए ए को तो हमें आइडेंटिटी मिलता है. इस पर हमने दोनों साइड से ए इनवर्स से ऑपरेट किया तो राइट साइड ए इनवर्स बन गई और लेफ्ट साइड इज ओनली द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्री मैट्रिसेस corresponding to the elementary row operations required to reduce the matrix A to identity matrix or reduced echelon form. Now this also leads to another result, that if I take the inverse of B, that is I take the inverse from both sides, if I take the inverse on both sides,
The right side is A inverse A inverse inverse. We know that A product B inverse क्या होता है? B inverse A inverse. That's good. P inverse A inverse. इसका मतलब ये है कि जिस तरतीब से यहाँ एलिमेंट्री मैट्रिसेस लिखे हैं और उनके ऊपर हमने सब पे इकट्ठा इन्वर्स लगा दिया, तो दैट विल बी E1 inverse, E2 inverse, E3 inverse, En inverse. And that is equal to what? A inverse inverse. What is A inverse inverse? A. 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 So that is the third result. So because this algorithm have been tested by practice, we know that applying elementary row operations, a particular sequence of elementary row operations on any square matrix which is invertible reduces the square matrix to identity matrix or reduced echelon form. इसका मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस्तेमाल किए उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करते चले जाएं ए को, तो हमें आइडेंटिटी मिलता है. दैट इज वाई हम कहते हैं कि ए का इनवर्स दर हकीकत is the product of the elementary matrices corresponding to the elementary row operations that we have used. This result can be put into this form. तो अगर हम चाहें कि जी मैट्रिक्स ये ए खुद कैसे बना है, तो मैट्रिक्स ए जो है उन्हीं एलिमेंट्री मैट्रिसेस के इनवर्सेस इन द रिवर्स ऑर्डर का प्रोडक्ट है मैट्रिक्स ए. और मैट्रिक्स ए इनवर्स क्या है? इन्हीं एलिमेंट्री मैट्रिसेस का ओरिजिनल सीक्वेंस में अगर प्रोडक्ट लें तो ए इनवर्स बन जाता है. Would you like me to show the significance of B and C, or for that matter, A as well? This, this, this in practice. Yes, sir. An example. Although we don't need it theoretically, it is proven, but वो कहते हैं ना confidence building measure. So for that, I consider some matrix, a small matrix for that matter, क्योंकि principle describe कर रहे हैं हम. So 1 minus 2 4 6 ये मेरा एक matrix है और इसको मैंने augment किया identity matrix से और मैंने अपने elementary row operation लगाने शुरू की. -4 times R1 plus R2. So the result becomes 1 minus 2 1 0 0. Minus 4 into 1, minus 4 plus 4, minus 4 into minus 2, 8 plus 6, 14, minus 4 into 1, minus 4, and this remains 1. So what are the first operations that I've used? Corresponding to that, my first elementary matrix is what? Here it is. Remember, elementary matrix is defined as a matrix obtained from identity matrix applying a single elementary row operation. तो इस identity matrix पे जो single row operation लगाया हमने वो ये था, इसकी शक्ल बनी ये. Now what else is required? Next step or next operation required is, sorry, not negative, positive. 1 by 14 R2. So what happens to this matrix? 1 minus 2 1 0, then 0 1, minus 4 by 14 is minus 2 by 7, 1 by 14. Now can anybody suggest me what is the second elementary row operation and the second elementary matrix? तो भाई 1 by 14 मैं I पे लगा के देखूंगा. I क्या है? वो ये है. So that will be 1 0 0 1 by
14. So second elementary row operations used is this. Second elementary matrix is this. Now there is one more elementary operation required to make this element 0. So what's the operation? 2 R2 R2 plus R1. plus R1. So second row remains as it is. One, 0. So 2 times R2, that means 2 times 1 added to minus 2, 0. 2 times this added to this. So minus 4 by 7 added to 1 would be what? Minus 4 by 7 added to 1 is 3 by 7. Then 2 R2, 2 into 1 by 14 is 1 by 7 added to 0. Now, we have obtained this as the inverse. But let us look at the corresponding elementary matrix for this operation. This will be applied on identity matrix. This is the identity matrix. इस पर ये elementary row operation लगाओगे, row 2 as it is रहेगी, row 1 क्या हो जाएगी? So E3 is equal to what? 1 1 0 2 1 0 1 by 14. तो आज हम ऐसे ही कर दिया बस एनजीओ में अक्सर ना और से समझ आ जाएगा लेकिन आई कांट पे अटेंशन राइट नाउ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर क्विज टुमारो ऐसे मैं लगाऊंगी तो मैं टाइम वेस्ट करूंगी क्लास लेके इक्वल टू A इनवर्स. ठीक है जी. तुम सर फ्रैंक को बोलना है 1 0 सर 0 ना ये जो है मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाए हैं A पर लगाए हैं और A जो है वो I बन गया. इस दौरान I जो है वो एक मैट्रिक्स बना जिसको हम क्लेम कर रहे हैं कि B इनवर्स A का इनवर्स है. अच्छा साहब, अभी जो हमने थ्योरम डिस्कस किए हैं इन द फॉर्म ऑफ ABC, ये कहती है कि A मैट्रिक्स को इन एलिमेंट्री मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी आ जाएगा. तो हमारा एक काम तो ये हो गया चेक करना कि हम ये जो मैट्रिसेस हैं we write down matrix A 1 minus 2 4 6. सबसे पहला एलिमेंट्री मैट्रिक्स ये इस्तेमाल करेंगे 1 0 minus 4 1. A से मल्टीप्लाई किया E1 से, फिर E2 1 0 0 1 by 14 E2 और फिर 1 2 0 1 by 14 E3. Excuse me, sir. जी बेटा. सर E3 का जो 1/14 वाला एलिमेंट है वो 1/14 होगा, 1 होगा. ओ करेक्टली राइट टाइम पे पकड़ लिया आपने. इस पर हमने ये वाला ऑपरेशन लगाया है तो सेकेंड रो ने चेंज नहीं होना. So this has to remain 1. So that correction has to be made here as well. And then let us check. Should I do the multiplication or you will check it yourself that it becomes 1 0 0 1? हाँ भी बताओ, मैं वक्त लगाऊं या तुम वक्त लगाओगे? सर प्लीज करना. अबे यार बड़े हो जाओ यार.
चार मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, और मैंने आपसे जो थ्योरम इस पर डिस्कस कर रहा हूं उसका पहला पार्ट ये क्लेम कर रहा है कि दिस प्रोडक्ट शुड कम आउट टू बी आइडेंटिटी VIY. Verify it yourself. I want to discuss one thing more. Looking at E1, would someone suggest what is E1 inverse? हमने लास्ट टाइम भी बात की थी इनवर्स 1 1 1 minus 1 2 minus 2 0 1 1 क्यों? 1 minus 2 0 1 sir. Yes, sir. इनवर्स ये होगा. What will be the inverse of E2? अच्छा E1 का E2 का इनवर्स क्या होगा? 1 0 1 over 14 0 1 over 14. 14 1 over 14 ही होगा. सही, यहाँ 1 होगा, 1 over 14 ऊपर होगा आपके पास. यहाँ पे यस सर. पक्की बात. यस सर. चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ. तुमने जो है अपना रूल इस्तेमाल किया है प्री यूनिवर्सिटी लेवल वाला, मगर यहाँ देखो सही ऑपरेशन कौन सा है. 1/14 R2 सेकेंड रो को 1/14 से मल्टीप्लाई किया है. तो हमने क्या तय किया था, इसका इन्वर्स क्या होगा? जिस रो को 1/14 से मल्टीप्लाई किया है उस रो को 14 से मल्टीप्लाई कर दें. अच्छा, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो जरा इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बना? 1/14. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0. देन second row first column 0. second row second column 1/14. तो जो इसका और इसका प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी तो नहीं आया. मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि 1 0 0 1/14 का इनवर्स आपने अपने पुराने मेथड से 1/14 0 0 1 बताया. यही है ना? अब मैं आपसे कह रहा हूं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज 1/14. मामला यही गड़बड़ हो गया. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0. फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0. सेकंड रो सेकंड कॉलम 1/14. इज इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स? तो लेकिन वो पुराने मेथड में तो इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड भी तो करते हैं ना, which is 1/14. जी एग्जैक्टली. तो आपने पता नहीं क्या किया. मैं आपसे ये सजेस्ट कर रहा हूं कि हम ये पहले तय कर चुके हैं, पिछला लेक्चर उठा के देख लेना कि 1/14 R2 का इनवर्स प्रोसेस क्या होगा. 1/14 R2 का इनवर्स प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स आए वो और E2 इनवर्स जो हम लिखें उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो. अब आप इस प्रोडक्ट में मुझे सजेस्ट करें कि मुझे व्हाट शुड आई बी राइटिंग. टू मेक द प्रोडक्ट 1001. यहां तो 1 आना ही चाहिए. Look at this. 1 0 1 0. That will give this 1. Then 1 0 0 whatever will give me 0. Then 0 whatever multiplied by this column will give me 0. All right. But this row multiplied by this column, what will give me 1? If I have 14 here. 14. Because
The reverse process of 1 upon 14 R2 is 14 R2. इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया और आपके इशार पे करना भी शुरू कर दिया. So this is the inverse of E2. Here is E2. And now suggest me the inverse of E3. जी. सर ये समझ नहीं आया सर. इवन इनवर्स से दोबारा समझा दें. अल्लाह अकबर. पिछला लेक्चर अटेंड किया था? जी सर. पिछले लेक्चर में मैंने डिस्क्राइब किया था कि मैं कैसे इनवर्स लिखूंगा. अब यहां मैंने सिंबॉलिकली उसको रिपीट किया, एग्जाम्पल से नहीं किया और तुम घबरा गए. अब मैं एग्जाम्पल कंसीडर कर रहा हूं एंड आई on the basis of your concern, सब साफ कर दिया मैंने. What was our first elementary row operation? First elementary row operation was this: minus 4R1 plus R2. So minus 4R1 plus R2 लगाना है आइडेंटिटी पे. That gives you E1 to look like 1 0 minus 4 0. Okay. Now what is the inverse operation? Inverse operation is 4R1 plus R2 applied on identity matrix. So the E inverse comes out to be what? 1 0 4 1. यकीन नहीं आ रहा? E1 इनवर्स को मल्टीप्लाई करके देख लो. 1 0 minus 4 0 1 0 4 1. What's the result? First row, first column 1. First row, second column 0. Second row, first column minus 4 plus 4 0. Minus 4 into 0 1. ठीक है जी. What was the second operation? 1 by 14 R2. 1 by 14 R2 applied on elementary matrix. What's the result? E2. That is 1 0 0 1 upon 14. What's the inverse of this operation? हमने कहा था इसका inverse operation है 14 R2. हमने ये तय किया था ना. So 0 14. और हम ये क्लेम कर रहे हैं कि E2 का इनवर्स जो है वो 1 0 0 14 है. अच्छा, यकीन नहीं आ रहा? मल्टीप्लाई करके देख लो. 1 0 0 14. Sorry, this was 1 by 14. This 1 0 0 14. So what's the product? First row, first column 1. First row, second column 0. Second row, first column 0. Second row, second column 1. What was the last operation? 2R2 plus R1. 2R2 plus R1 applied on identity matrix. That gives you E3, and E3 0 2 1. हमने कहा था कि ऑपरेशन 2R2 plus R1 का रिवर्स ऑपरेशन होगा minus 2R2 plus R1 applied on identity matrix. That means the inverse of E3 will be what? 1 0. Sorry, ये क्या कर दिया मैंने?
एलिमेंट्री मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन -2r2 r1 लगाया, क्योंकि -2r2 + r1 इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ 2r2 + r1। 2r2 + r1 को भी आइडेंटिटी पे लगाना है और इसके रिवर्स ऑपरेशन को भी आइडेंटिटी पे लगाना है। और हम ये क्लेम कर रहे हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ रहा है ये। और अब हम देख रहे हैं कि E3 और E3 इनवर्स जो हमने लिखे हैं वो क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं। 1 0 2 1 मल्टीप्लाइड 1 0 -2 1, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1। अच्छा, आपका कंफ्यूजन जो डेवलप हुआ था वो इसलिए डेवलप हुआ था कि आपने इसके इन्वर्स को अपने उस मेथड पे चेक किया था। किस मेथड पे? एडजॉइंट मेथड पे, जॉइंट मेथड से। मगर यहां E2 का इन्वर्स जो है वो एक प्रोसेस के तौर पे इन्वर्स आ रहा है। और वो प्रोसेस क्या है कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर मैं किसी रो को मल्टीप्लाई करता हूं किसी नंबर से तो एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनेगा। अब मैंने एक प्रोसेस लगाया आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, इस प्रोसेस का उल्टा प्रोसेस क्या है? अगर मैंने 1/14 से मल्टीप्लाई किया सेकंड रो को तो इसका उल्टा प्रोसेस जो है वो इस नंबर के रेसिप्रोकल से R2 को मल्टीप्लाई करना है, जिससे कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही आएगा, जिसको हम क्लेम कर रहे हैं कि इसका इनवर्स है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमने यहां 3 एलिमेंट्री मैट्रिसेस देखे, इनमें से E1 ये वाला और E3 इन दोनों के डिटरमिनेंट्स 1 है, लिहाजा इनका इनवर्स तो वैसे ही आ रहा है जैसे कि आपका पुराना रूल था। लेकिन ऑपरेशन E2 जो है इसका डिटरमिनेंट 1 नहीं है, लिहाजा एडजॉइंट मेथड पूरा इस्तेमाल होगा अगर तुम इस तरह से करोगे तो। इसका डिटरमिनेंट क्या है? 1/14, वही 1/14 आ रहा था कॉलम पे जब तुम कह रहे थे कि इसको यूं कर दें, और जब प्रोडक्ट लिया तो कॉलम 1/14 हो गए। So be careful while writing down elementary matrices. Now I have to leave verification of this line to you, and the theorem says inverses का जो प्रोडक्ट है रिवर्स ऑर्डर में वो मैट्रिक्स A होगा। मैट्रिक्स A क्या है? 1 -2 4 6, 1 -2 4 6। थ्योरम क्लेम कर रही है कि एलिमेंट्री मैट्रिसेस के इनवर्सेस का प्रोडक्ट है रिवर्स ऑर्डर में। तो E3 इनवर्स पहले, उसके बाद E2 इनवर्स, सॉरी यस, उसके बाद E1 इनवर्स। यानी मैट्रिक्स A जो है दैट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ E1 inverse, which is 1 0 4 0 4 1, 1 0 4 1. What is matrix E2 inverse? 1 0 0 1/14. And what is E3 inverse? 1 0 -2 1. Verify it yourself. तो दो चीजें वेरिफिकेशन के लिए छोड़ रहा हूं। एक ये
कि E3, E2, E1 प्रोडक्ट A इज आइडेंटिटी इस एग्जाम्पल में, जबकि हम इसको बाय प्रैक्टिस देख चुके हैं. So that's it that I wanted to discuss about elementary row operations and their effects. And I wanted to discuss a 3 by 3 matrix for this purpose. लेकिन मैं पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा, कुछ करके छोड़ दूंगा आपके लिए. ये हमारे पास मैट्रिक्स है और हमने ए तो ए बी सी तीनों वेरीफाई करने हैं. तीनों वेरीफाई करने के लिए हमें एलिमेंट्री मैट्रिसेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स लिखने हैं. So what is a augmented I? 1 2 0 1 0 0 3 0 5 0 1 0 0 3 minus 2 0 0 1. अच्छा, मैंने यह मैट्रिक्स आर्बिट्री लिख दिया. How would you recognize through this process कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है without evaluating determinant? Any smart person? Give me. Repeat the question. Okay. मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने आर्बिट्री लिख दिया, मुझे नहीं पता इन्वर्टिबल है कि नहीं है, और मैंने उसका इन्वर्स इस तरह से निकालना शुरू कर दिया. अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है तो इस प्रोसेस से मुझे कैसे पता चलेगा कि इन्वर्टिबल नहीं है? डिटरमिनेंट के थ्रू सर. मैंने कहा बगैर डिटरमिनेंट के. अगर कोई पूरा रो अगर 0 हो तो उसमें जी, एक मकसद कहने का है कि ये मैट्रिक्स जो है, यानी ये वाला पार्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बने. रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म तो आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बने, एंड दैट विल बी द इंडिकेशन कि ए जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है. अच्छा साहब, what's the first elementary row operation you will require to start reducing this to reduced echelon form? Suggest me the operation. जी जनाब. What should be the first elementary row operation I will use? 3r1 minus r2 Minus 3r1 plus r2. देखो, तुमने जो कहा था वो गलत नहीं है, लेकिन मेरी ये तरतीब याद रखो, एल्गोरिथमिकली दिस इज इंपॉर्टेंट. और मैंने अभी एलिमेंट्री मैट्रिक्स लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग. सो -3 + 3 0, -3 × 2 -6 + 0, -3 × 0 + 5, -3 × 1 -3 1 0. ये ऑलरेडी 0 है, लिहाजा यहां पे कोई तब्दीली नहीं आई. Now what is E1? First row multiplied by -3 added to the second row of the identity matrix. And what's the inverse of this? जी बताइए. तो 3r1 + r2 करते जाएंगे तो क्या बनेगा? 3 हो जाएगा. 3 1 1 0 0 0 0 1. तो ये आपने किस पे लगाया ऑपरेशन? ओरिजिनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे. ओरिजिनल आइडेंटिटी. ठीक है, ओके.
Now our current form of augmented matrix is this, and I have to convert this element to 1. What operation is required? The -6 R2 minus divided 1 by by 6 minus 1 by 6 Yeah. R2. -6. आप उसको डिवाइड बाय क्या या मल्टीप्लाई बाय क्या? 1 2 0 1 0 0 0 1 minus 5 by 6 1 by 2 minus 1 by 6 0 0 3 minus 2 0 0 1. The new form of augmented matrix. What is E2? यानी जो सेकेंड ऑपरेशन मैंने लगाया उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है? इस ऑपरेशन को ओरिजिनल एलिमेंट्री मैट्रिक्स पर लगाएं. 1 0 0 0 -1/6 minus 1 upon 6 0 0 0 1. And what is its inverse? तो Multiply 6 it with 1 by 6. -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. E minus 6 say yes. So minus 6 0 0 0 1. And now you can see the second row, second column becomes 1, positive 1. Okay. What new operations are required? इस एलिमेंट को 0 बनाना है, इसको बनाना है. Remember, we have to reduce the augmented matrix to reduced echelon form. So minus 2 R2 plus R1 and minus 3 R2 plus R3. मैं ये नहीं लिख रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ what is E3. इसको आप E3 ले ले. So what's the corresponding result? Identity matrix की second row as it is रहेगी. सेकेंड रो के जरिए फर्स्ट रो चेंज होके क्या हो जाएगी? -2 0 1 तो ये तो यही रहेगा, -2 यहाँ आ जाएगा. इस पर ये ऑपरेशन लगाया. सो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस? So 2R2 plus R1. So 0 1 0 1 2 0 0 0 1. Now you are thinking in terms of the reversal of the operation, elementary row operation being used, and that is the appropriate thing. अच्छा, यहाँ दो operations लगे हैं. अगला ऑपरेशन ये वाला. First row is not contributing, second row is not affected, third row is changed due to this operation. Minus 3 R2 plus R3. So ये आ गया. What is E4 inverse? 1 0 0. The reverse of this 3 R2 plus R3. 3R2 plus R3. So 0 3 1. मैंने कहा कि मैं ये नहीं लिख रहा, आप ये लगा लेंगे. ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे. इसकी जो शक्ल बनेगी उसको 1 बनाएंगे. एक एलिमेंट्री ऑपरेशन आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिसेस लिखेंगे, उसका इनवर्स लिखेंगे. उसके बाद परहैप्स 2 more operations will be required or 1 more. हमारे पास यहाँ राइट साइड पर एलिमेंट्री मैट्रिसेस that you multiply with A, E1, E2, E3 ये डेवलप होता चला जा रहा है. And this reduces to I if the matrix A is invertible. And on the other side, what's happening? We have got, let us check. अगर मैं लिखूं कि मैं किसी मैट्रिक्स पर E1 इनवर्स, E2 इनवर्स, E3 इनवर्स इस तरतीब में लगा रहा हूं तो क्या बनेगा? किस मैट्रिक्स पर लगाऊं तो क्या बनेगा? अगर मैं इसको आइडेंटिटी पे लगाता हूं तो ये A बनेगा. Is it so? Let us look back at our result. A जो है वो इस ऑर्डर में नहीं है, बल्कि इसके रिवर्स ऑर्डर में है.
यानी E1 इनवर्स सबसे पहले, E2 इनवर्स उसके बाद, E3 इनवर्स उसके बाद, और जितने भी आ रहे हैं हमारे पास इन सबको I से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल गिव अस A. सो A, B, C, ये तीन चीजें वेरीफाई करनी है आपने. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, complete it yourself and verify A, B and C. सर इस पॉइंट पे अगर हम B और C को भी मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आइडेंटिटी आ जाएगा, राइट? एक मिनट. आप इनके हवाले से बात कर रही हैं? जी, B हमने और जो C. तीन इक्वेशंस Of बनाई course, हैं, बेटा A, B, ये A इनवर्स है और ये A है, इनका प्रोडक्ट जाहिर है I आएगा. नहीं, ऑन दी लेफ्ट राइट साइड को भी अगर हम किसी भी फॉर्मेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक E's को, सारे एलिमेंट्री रोज को भी हाँ मल्टीप्लाई करें, if we are not given A and A inverse, and if you हाँ. want to find, I mean, if you want to just prove that it is identity, so सारे E's and उसका रिवर्स में E inverses, हाँ. उन सबको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, राइट? You are talking about left hand side of A multiplied Yes. with the left hand side of C. Yes. Yes. Oh, that's another problem. A nice suggestion of a problem to prove this. है ना? Okay. और ऐसा होगा क्यों कि यहाँ पे ऑर्डर 1 2 3 है और यहाँ ऑर्डर उल्टा है. तो जब तुम इसको और इसको उल्टा मल्टीप्लाई है. करोगे, सबसे पहले लड़ेंगे आपस में E1 और E1 इनवर्स, वो मिलके आई होंगे. फिर E2 और E2 Oh. इनवर्स मिलेंगे, वो मिलके आई होंगे डेफिनेटली. सो देयर शुड बी एज मैनी एलिमेंट्री मैट्रिसेस हियर एज देयर आर. अगर यहाँ 10 एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं, यहाँ भी 10 होने चाहिए, राइट? यू पिक्ड इट करेक्टली. बट मेरी ख्वाहिश है कि आप ऐसा करें कि ये जो मैंने अभी क्वेश्चन किए आधा करके छोड़ दिया, गाइड कर दिया आपको, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें. यानी पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि फाइंड ए इनवर्स यूजिंग दिस मेथड, यानी पूरा प्रोसेस करें. पूरा प्रोसेस करने के साथ साथ ये लिखते चले जाएं साथ में कि हर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस्तेमाल करते ही उसके सामने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स लिखें और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्रीज के इनवर्सेस लिखते चले जाएं, और उसके बाद A, B, C सब वेरीफाई करें. एंड लेट मी गिव यू अ टारगेट. असाइनमेंट नंबर 1.01 0.01 कह रहा हूं इसलिए कि इट्स नॉट अ रियल बिग असाइनमेंट बट इट इज असाइनमेंट. तो मैं इसको पोर्टल पे भी अपलोड कर दूंगा और आई विल नॉट गिव यू मोर देन 2 days फॉर दिस. बल्कि चलो मैं 2 days नहीं, कल तो हमने क्विज करना है ना, या क्विज आज जी, करना था? कल करना है. कल करना है क्विज. ओके, संडे मंडे 2 दिन दे रहा हूँ इसको कंप्लीट करने का. सो संडे मंडे नाइट मिडनाइट. हाँ, प्लीज ट्यूसडे दे दे. मंडे को ऑलरेडी 2 असाइनमेंट दिए. अगर फिजिकल क्लास हो रही होती ना तो मैं आके एक चप्पल लगा था तुम्हारे सर पे. डोंट आस्क फॉर सहूलत. देखो बेटा, तुम चाहे स्टूडेंट हो, चाहे एक एम्प्लॉय हो, चाहे एक बिजनेसमैन हो, तुम्हें कभी भी अपना टारगेट खुद तय करने का कोई कहीं हक नहीं मिलता. अगर तुम नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारा बॉस जो है तुम्हारा टारगेट तय करेगा और तुम टारगेट अचीव नहीं करो तो छुट्टी कर देगा. अगर तुम बिजनेसमैन हो तो मार्केट कंडीशन तुम्हारी टारगेट तय करेंगी. अगर वो तुम टारगेट मीट नहीं करोगे तो बिजनेस में पीछे रह जाओगे. यहाँ जब हम एक तुम्हें टारगेट देते हैं तो असल में हम तुम्हें ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि ठीक है, तुम्हारे 4 असाइनमेंट उसकी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी होंगे, तुम्हारा क्विज भी होंगे, 3 सब्जेक्ट के क्विज भी होंगे. हाँ, सबके हो रहे होंगे. ये कौन सा बड़ा मैंने असाइनमेंट दिया आपको, ये 10 मिनट बैठोगे तो कंप्लीट हो जाएगा. ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टाइम लगता है बस, और कोई मसला नहीं. इसीलिए मैंने 3 by 3 की तरह रखा है.
What if I consider a 4 by 4? You can see that in 4 by 4 there will be more elementary operations and more, of course, every elementary matrix then will correspond to a 4 by 4 matrix. अच्छा जी, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 3 पूरा हुआ। सर आप कुछ टारगेट दे रहे थे इसके बाद आफ्टर दीज वेरिफिकेशन क्या करना है? हाँ, मैंने जो असाइनमेंट दिया है वो ये है कि इसका let me box it. This is the assignment, that find the inverse of this matrix and verify A, B, C statements above. ये हमने आज statements discuss किए हैं theoretical, इनको verify करें. So this is the assignment. Number 1.1. Deadline 11:55 p.m. Monday. 15 Feb. सर अब आपने टी लिख दिया है। अभी Monday, डेट क्या बताई? 15 Feb, yeah. 15 February. मैं इंशाल्लाह आज रात को या कल किसी वक्त पोर्टल पर डाल दूंगा ये। हमें ये कह रहा था कि आज का मैंने ऑब्जेक्टिव नंबर 3 पूरा कर लिया। हाँ, you have learned how to solve a system of linear equation. Now, if you are confronted with multiple systems of the form Ax is equal to B1, Ax is equal to B2, Ax is equal to B3, etc. Ax is equal to Bk. That means there are k system of linear equations. In every system, coefficient matrix is same. Number of unknowns same. So हम इन सिस्टम्स को फिर अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे, इन सिस्टम्स को हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे। इस सूरत में हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी? हाउ टू सॉल्व दिस सेट ऑफ systems of linear equations. इसके लिए हम क्या करेंगे कि A को ऑगमेंट करेंगे B1 से, B2 से, B3 से, Bk से। यानी अगर हमारा मैट्रिक्स A जो है ये n by n है फॉर एग्जाम्पल, तो n कॉलम्स यहाँ आएंगे और k कॉलम्स मजीद लग जाएंगे इसमें, और इन सबको हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल I have 3x minus 4y is equal to 4, 4x plus 5y is equal to 6, 3x minus 4y is equal to 5, and 4x plus 5y is equal to, say, 11. So we see that 3 minus 4, 4, 5 as a coefficient matrix is common. यहाँ भी यही कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यहाँ भी यही कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो एक स्ट्रेटजी तो ये है कि मैं पहले ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊं, फिर इसको सॉल्व करूं, और फिर दूसरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊं और उसको सॉल्व करूं। इंस्टेड व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि इसका जो राइट साइड का कॉलम है वो भी मिला लो साथ ही, और शुरू हो जाओ। 1/3 R1
produces 1 minus 4 by 3, 4 by 3, 5 by 3, 4, 5, 6, 11. This element has to be converted to 0. So minus 4R1 plus R2. First row as it is. Minus 4 plus 4, 0. Minus 4 into minus 4 by 3. 16 by 3 added to 5 is 31 by 3. Minus 4 into this. Minus 16 by 3 plus 6 is 2 by 3. Please verify my algebra. आपके हाथ में अगर कैलकुलेटर है तो इसको वेरीफाई कर लें. Minus 4 into 5 by 3 is minus 20 by 3 added to 11. 13 by 3. I think I should write this as this. I'm solving two systems of equations at the same time. My next operation is 3 by 31 R2. That makes the system 1 minus 4 by 3, 4 by 3, 5 by 3, 0, 1. So 2 by 31 and 13 by 31. I will suggest case Surat when we are solving multiple systems with common coefficient matrix. Reduced Lagrange form में चले जाएं. So reduced Lagrange form के लिए तुम्हें क्या चाहिए? Operation 4 by 3 R2 plus R1. Second row remain as it is. First row is affected. So 4 by 3 multiplied by 2 by 31 added to 4 by 3. भाई कोई कैलकुलेटर वाला मुझे इसका जवाब देगा. यहाँ पे आना है ये नंबर. And then 4 by 3 multiplied by 13 by 31 added to 5 by 3. Forty-four by 3. 44 by 44 by 31. Yeah. पक्की बात. जी sir. Hopefully. Hopefully. 4 by 3 multiplied by 13 by 31 plus. मतलब तुम्हारे कैलकुलेटर फ्रैक्शंस का अलजेब्रा करता है ना? जी sir. $69 by 31. Next वाला. Next वाला 69 by 31. 31. Okay. Now we see that हमारा पहला जो सिस्टम है B1 उसमें x is equal to क्या बताया था 44 by 31. जी sir. 44 by 31 और y जो है वो 2 by 31. दूसरा जो सिस्टम हमारा था वो ये था. उसमें x is equal to 69 by 31 and y is equal to 13 by 31. अब ये जो रिजल्ट्स आए हैं हम कैसे वेरीफाई करेंगे? जो रिजल्ट्स आए हैं एक्स वाई की इसमें वैल्यू रख के इसको वेरीफाई करें, एक्स वाई की वैल्यू इसमें रख के इसको वेरीफाई करें. वेरिफिकेशन इज ऑलवेज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर. सो ये हमारे रिजल्ट्स हैं. अगर हमने कहीं गलती कर दी है छोटी मोटी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगी. लेट मी क्विकली रिपीट व्हाट आई हैव जस्ट डन. मेरे पास मल्टीपल सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं.
एक नहीं 400 है, और हर सिस्टम इक्वेशन में कोफिशिएंट मैट्रिक्स सेम है। सो 400 इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करने के बजाय 400 इक्वेशंस को मैं इकट्ठा सॉल्व करूंगा। ऑफ कोर्स जाहिर है 400 की एग्जांपल में करके नहीं दिखा सकता। सो आई सेलेक्टेड 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड डिस्कस यू द प्रिंसिपल कि हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ऑगमेंट करेंगे राइट हैंड साइड के कांस्टेंट कॉलम्स हर गिवन मल्टीपल सिस्टम्स में से उठा के, B1 B2 B3 होता तो यहाँ रखते, B4 होता, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए। अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनता तो ये सिस्टम सॉल्वेबल नहीं है, ये तो आप लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा। सो दिस इज हाउ द मल्टीपल सिस्टम्स all having same coefficient matrix can be handled. Exercise सर आंसर्स ठीक है। very good. चलिए साहब, तो मेरा टारगेट और ऑब्जेक्टिव 4 पूरा हो गया। अच्छा, एक छोटी सी सवाल का जवाब दो। If A and B are square matrices of same order, हमें नहीं पता ये इन्वर्टिबल है या नहीं है, लेकिन A product B is invertible, इस सूरत में हम क्या कह सकते हैं? कैन वी से समथिंग अबाउट इन्वर्टिबिलिटी ऑफ ए एंड बी? टू स्टार्ट विद वी डोंट नो, हमें सिर्फ ये पता है कि स्क्वायर हैं ऑफ सेम ऑर्डर, और ए प्रोडक्ट बी जो है वो इन्वर्टिबल है। हमारा क्लेम है कि ए बी आर ऑल्सो। अगर आपसे कोई पूछे कि इसको प्रूफ करें, डिमॉन्स्ट्रेट करें, व्हाटएवर, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए तो आप एक छोटी सी एग्जांपल लेके डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे, लेकिन ए प्रोडक्ट बी इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या है? कि ए प्रोडक्ट बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स मौजूद है, और वो है ए बी इनवर्स। जबकि ए बी इनवर्स की प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद है कि दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये उस वक्त ही पॉसिबल है जब ए और बी दोनों इन्वर्टिबल हो, एंड दैट इज सफिशिएंट टू शो दैट ए एंड बी आर इन्वर्टिबल। अच्छा जी, अक्सर वो बेशतर इन्वर्टिबिलिटी दिखाने के लिए हम दोनों डायरेक्शन से करते हैं। तो ए प्रोडक्ट बी इन्वर्टिबल है, तो क्या बी प्रोडक्ट ए भी इन्वर्टिबल होगा? सेम ऑर्डर, स्क्वायर। Would there be an inverse for this? Yes sir, I think yes, because उसका Because A this is inverse equal B, to A, यानी A inverse B। फर्स्ट स्टेप में हमने ए और बी को इन्वर्टिबल साबित कर दिया, और सेकंड स्टेप में हमारे पास बी प्रोडक्ट ए की इन्वर्टिबिलिटी को चेक करना है। तो बी प्रोडक्ट ए का इन्वर्स ये होगा जो कि ए और बी की इन्वर्टिबिलिटी से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा जनाब। So we are into exercise 1.6 और उससे पहले मैंने 1.5 का जिक्र किया है, आप लोगों से नहीं किया? जी सर। तो 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जरूर कर लीजिएगा। इस चैप्टर में जो मेरी ऑब्जेक्टिव्स थे वो मैंने अचीव कर लिए हैं। लेट मी tell you what are the major objectives. That means you should never be taking these things
likely. सबसे पहले solve system of linear equation ax is equal to p. किस तरह सॉल्व की जाती हैं? आपको पता है, आपने स्टार्ट किया था साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड से क्लास 7 और 8 में, 2 इक्वेशन 2 अननोन। उसके बाद आपको सिखाया गया क्रैमर्स रूल, जब आपने थोड़ा डिटरमिनेंट सीख लिया। फिर हमने आपसे कहा कि नहीं यार, गॉस एलिमिनेशन जो है या गॉस जॉर्डन इज द अल्टीमेट, और उसके लिए हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस इंट्रोड्यूस किए, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की एक स्पेशल सीक्वेंस के जरिए हमने आपको काम करना सिखाया। इस स्पेशल सीक्वेंस के दौरान हमने बेसिक वेरिएबल्स और फ्री वेरिएबल्स का जिक्र किया। I hope you remember that we have done this. Yes, sir. हमने देखा कि अगर हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ इस फॉर्म में, तो अब उसके कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया क्या है? उसके लिए हमने रैंक का आइडिया फिल वक्त इस्तेमाल किया, और रैंक की बुनियाद पर हमने देखा कि किस सूरत में सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और किस सूरत में एग्जिस्ट नहीं करता। जिस सूरत में एग्जिस्ट करता है सिस्टम का सॉल्यूशन, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, यूनिक सॉल्यूशन एंड इन्फिनिटली मैनेज सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, अगर आप गॉस एलिमिनेशन डील कर रहे हैं तो बैक सब्स्टिट्यूशन से, गॉस जॉर्डन कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। लेकिन अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है और सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो आपके पास 1 या 2 फ्री वेरिएबल होंगे। आप चाहें तो गॉस जॉर्डन इस्तेमाल करें, हमने सजेस्ट किया गॉस एलिमिनेशन, लेकिन हम कोई पाबंदी नहीं लगा रहे। जब तक कि हम पाबंदी ना लगा दें, यानी किसी क्विज में, किसी टेस्ट में, किसी फाइनल एग्जाम में, जब तक हम मेथड स्पेसिफिक ना बना दें क्वेश्चंस को, उस वक्त तक आप फ्री हैं कोई मेथड इस्तेमाल करें। ठीक है जी। तो कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया जो है उसकी बुनियाद हमने रैंक पर रखी, तो हमने रैंक निकाला। ऑफ कोर्स रैंक निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट से गुजरे, इक्लान फॉर्म और रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म। सो हम इससे गुजरे, एंड ये वो सारी चीजें जो, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको अभी एक क्विज दे दूं, तो आपको मैं एक मैट्रिक्स दे दूं, आपसे कहूं कि इसकी इक्लान फॉर्म निकाल दें। So whenever I will have an unannounced quiz, it will be something like that. Okay? अच्छा जी, इसके बाद कहाँ पहुंचे हम? इनवर्स, क्योंकि इसका एक मेथड जो है आपने कहीं स्कूल में ये भी पढ़ा कि अगर मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है तो आप इस तरह निकाल सकते हैं इनवर्स। लेकिन हमने इनवर्स के दूसरे इश्यूज ज़्यादा डिस्कस किए, कुछ थ्योरम्स, कुछ रिजल्ट्स, कुछ बेसिक, और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स प्रोसेस यानी रिडक्शन प्रोसेस इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और एलिमेंट्री मैट्रिसेस के दरमियान एक ताल्लुक, एक रिलेशन, एक इक्विवेलेंस जो है वो डिस्कस की, और एलिमेंट्री मैट्रिसेस का रोल डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ कि मैं जब इसको रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म में लाता हूं तो ये जाता है आई बी। तो ए पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के हम आई बनाते हैं, तो आई पर वही एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के हम ए इनवर्स बनाते हैं, जिस पर आज हमारी डिस्कशन खत्म हुई है। कोई एक्सरसाइज, कोई क्वेश्चन, किसी भी एक्सरसाइज में आपको इन इश्यूज से रिलेटेड नजर आते हैं तो consider them as must do. So you should not be missing any of these things that I have just summarized. Yes, exercise में और बहुत से सारे क्वेश्चंस होते हैं, जाहिर है
जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के सिलसिले में आपको दे दिया गया कि जी मैट्रिक्स ए की एक पूरी रो 0 है, तो अब मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी जो है उसका क्या, उसमें क्या होगा, उसमें भी पूरी एक रो 0 है, ब्ला ब्ला काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस टाइप के होते हैं, जो आपको जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड बाकी चीजें जो होती हैं छोटी मोटी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो जरूरी होती हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो इंडेक्स फॉर्म है कि जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स कैसे बनते हैं। आप बरसों से जानते हैं कि पहली मैट्रिक्स की एक रो उठाते हैं, दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने उसको रिवाइज किया कि दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। Later on we'll be calling it another name, and that will be part of our study of spaces, and that will become more important. So with these comments I terminate today's discussion. कल कुछ तो होगा, बट मैं थोड़ा सा डिटरमिनेंट को, जिससे आप लोगों की काफ़ी जान पहचान है, आपने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ी हैं, but we will look into determinant from a different point of view, from a more generalized point of view. Although determinant is not a very essential part whenever I teach linear algebra, but for academic completeness मैं determinants का दौरा जरूर करता हूँ। सो मैं कल ही का जिस दिन जो है वो डिटरमिनेंट डिस्कस करूंगा, और आपका जो क्विज प्रॉमिस किया हुआ है वो कहाँ तक का है? 1.3 तक सर। 1.3 तक, ठीक। तो अब मैं ख़त्म करता हूँ। ओह 2-3 मिनट ऊपर हो गए, खैर कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग।